Our session that deals with regional pride over national identity. We have Mr. Rajdeep Sardesai, Editor-in-Chief, CNN IBN and IBN 7, to moderate and introduce our speaker for this session, Mr. Narendra Modi, the Chief Minister of Gujarat. Ladies and gentlemen. Thank you. I think it's purely coincidental that Mr. Modi and I have worn saffron today. It's proof that color is no longer the monopoly of one ideology, but we will discuss that on another day, another time. But we're all friends, and we welcome Narendra Modi, the Chief Minister of Gujarat. After Dr. Singh and Sonia Gandhi, it's the turn of Mr. Modi. Mr. Modi was asking me since he was in the flight as to what had Sonia and Manmohan spoken about, or Manmohan Singh ji had spoken about. And I said that they had spoken about the nuclear deal. So Mr. Modi says, I can also speak on deals, but I won't speak on the nuclear deal. But he's one politician who draws contrasting emotions. His supporters truly admire him and say that he is Mr. Gujarat. And his detractors feel that, in a sense, he is symbolic of a divisive politics. Either way, like him, dislike him, you can't ignore Narendra Modi. And I think his presence at this platform, in a sense, signifies that. The way we thought we'd do this is Mr. Modi will speak on the topic that we've kept in the brochure, which is looking at regional identity versus regional pride versus national identity. Mr. Modi belongs to the new brand of chief ministers who have virtually become brands themselves. Some of them become larger than the parties that they represent also. And their strength comes from the fact that they control important states of the country. He, in a sense, is therefore typical of a new breed of chief ministers who, and many believe that the power now comes from state capitals, and the future of India could well be decided in states and not at the center. So I'm going to open the floor to Mr. Modi to speak for about 10-15 minutes. He says his voice is not at its best. That happens when elections are around the corner. We'll give him 10-15 minutes, Mr. Modi, and then open up for questions. Mr. Narendra Modi, Chief Minister of Gujarat. राजदीप को उसके टीआरपी का डर लग रहा है और इसलिए पहले से उसने दीवार बना दी कि आज उसके कुर्ता के कलर का उसकी आइडियोलॉजी से लेना देना नहीं है, और इसलिए मैं भी उसको क्षमा कर देता हूं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं अहमदाबाद से निकलूंगा और इतना प्रभाव उस पर हो जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। मित्रों, हिंदुस्तान टाइम्स के बीच आने का मेरा एक पहला अवसर है। मैं हिंदुस्तान टाइम्स के सभी मित्रों का हृदय से आभारी हूं, और बहुत वेल इन एडवांस उन्होंने मेरा समय फिक्स कर दिया था। और तब मैंने उनसे कहा था कि शायद आचार संहिता आ जाएगी और मुझे दिक्कत होगी, तो उन्होंने कहा जो भी आ जाए आप आ जाइए। तो मैंने फिर वादा निभाना तय कर लिया और मैं आज आपके बीच में हूं। जो विषय रखा गया है, मैं उसमें जो कॉन्ट्राडिक्शन खोजने की कोशिश हो रही है, मैं समझता हूं अपने आप में वो गलत दिशा की सोच शायद देश में पनपेगी। भारत जैसे विशाल देश के अंदर हम अगर ये चाहें कि राज्य कैसे भी करते रहें देश आगे बढ़ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। और ये हम कहें कि राज्य अधिक बल देकर के आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं तो देश की आइडेंटिटी को खतरा हो जाएगा, मैं समझता हूं वो भी उतना ही गलत है। दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे के पूरक हैं,
पोषक हैं। भारत सरकार और या भारत नेशनल लेवल पे जो सोचते हैं उनका काम यह है कि जहां जिसकी स्ट्रेंथ हो उसको बल मिलना चाहिए और जहां उसकी वीकनेसेस हो उसमें उसको हेल्प मिलनी चाहिए। अगर ये हमारा मॉडल हम विकसित करते हैं तो हम देश की कमियों को दूर कर पाएंगे और देश में जहां जहां बिखरी पड़ी ताकतें हैं उन ताकतों को बढ़ावा भी दे सकते हैं और उन ताकतों को जोड़ करके एक भारत को शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में हम पेश कर सकते हैं। दूसरा, आज एक दुनिया में मॉडल चल रहा है, वो बाय एंड लार्ज शोकेस वाला मॉडल चल रहा है। अब जैसे चाइना के पूरे डेवलपमेंट की चर्चा नहीं हो रही है, चाइना के ईस्ट बेल्ट की चर्चा हो रही है और दुनिया के सामने उसी को दिखाया जा रहा है और चाइना का मार्केटिंग हो रहा है। किसी समय न्यू दिल्ली एक मॉडल के रूप में हमारे देश में दिखाया जाता था, लेकिन वो एक अंग्रेज विरासत हमारे पास थी और दूसरा एक राजनीतिक व्यवस्था का सरकार के रूप में एक हिस्सा था जो जन सामान्य को प्रेरित नहीं करता था। दूसरा प्रयास किया गया मुंबई को फोकस करने का, लेकिन उसके अपने कंस्ट्रेंट्स थे अनेक प्रकार के, उसके कारण एक स्टेज आने के बाद हम रुक गए। ये बस एक है, हिंदुस्तान की पहचान की चर्चा होगी थी, आज दुनिया में कहीं पर भी तो दिल्ली के बाद मुंबई की चर्चा होती होगी, लेकिन एक सम पॉइंट ऑफ टाइम वो वहां रुक गया। इसका मतलब इस मॉडल को जाने अनजाने स्वीकार तो किया गया है। अगर ये मॉडल को स्वीकार किया गया है तो क्यों ना हम खुल करके इन शक्तियों को स्वीकार करें। और मैं मानता हूं तत्वतः उस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि जिसका जहां पोटेंशियल है, अगर हैदराबाद और आंध्र को आईटी के माध्यम से दुनिया में हम शोकेस कर सकते हैं, हमने करना चाहिए। अगर बेंगलोर की नॉलेज कैपेसिटी को अगर हम स्ट्रेंथ मानते हैं तो हमने दुनिया के सामने जाना चाहिए। अगर गुजरात का डायमंड दुनिया में चमकता है तो उस डायमंड की भरपेट तारीफ करते हुए चलना चाहिए। जब तक हम इस रूप का स्वीकार नहीं कर सकते, देश एक फेडरल स्ट्रक्चर है, हम अच्छाइयों को, शक्तियों को न बढ़ावा दे पाएंगे न पहचान कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि समय की मांग है कि हम देश में एक हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करें। अब ये हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट स्टेट और सेंटर के बीच आज संभव नहीं है, लेकिन विद इन स्टेट जरूर संभव है। उसके पैरामीटर बन सकते हैं, वेल इन एडवांस पैरामीटर्स की चर्चाएं हो सकती हैं। अदर देन गवर्नमेंट एफिलिएटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको लीड कर सकते हैं और हर एक को ध्यान में आएगा कि भाई इस क्षेत्र में देश यहां प्रगति कर रहा है, इस क्षेत्र में यहां कर रहा है, वहां से कुछ सीखा जा सकता है और वहां कुछ चीज ले जाई जा सकती है। और मैं समझता हूं इस मॉडल की ओर हमने जाना चाहिए। जहां तक विकास का सवाल है, मेरा ये मत जरूर है कि आजादी के समय देश में आजादी की जो ललक थी, आजादी के लिए हर नागरिक जिस प्रकार से जुटा था, अब आजादी का आंदोलन 1857 से 1857 से उसकी चर्चा तो हो रही है। व्यक्तिगत रूप से अनेक लोगों ने बलिदान दिए, बहुत कोशिश की देश को आजाद कराने के लिए। सैकड़ों लोग थे जो अंडमान निकोबार की जेलों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह था कि उन्होंने आजादी को जन आंदोलन पर परिवर्तित किया। हर व्यक्ति को लगा कि मेरे इस कार्य से मैं आजादी में योगदान दे सकता हूं, आजादी के योगदान में। और यह सबसे बड़ा महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने देश के हर नागरिक को आजादी की ललक पैदा की, हर आदमी को जोड़ा। आजादी की जो ललक गांधी ने पैदा की थी, जो जन आंदोलन पैदा किया था, अच्छा होता देश आजाद होने के बाद विकास की वो ललक हम पैदा कर पाते हैं, डेवलपमेंट एक मूवमेंट बन जाती है, डेवलपमेंट को एक जन आंदोलन में परिवर्तित किया जाता है।